علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو یوٹیوب کے چینل لودرا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملک خضر حیات لودرا، سینئر نائب صدر لودرا قومی اتحاد۔ میں آج اسپیشلی اپنی قوم سے مخاطب ہوں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم لودرا قوم ایک مثالی قوم ہے، اور اس میں رحم کرنے والے جو ہماری برادری کے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو احساس کا اور محبت کا رجحان ہمیں لودرا قوم میں ملتا ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا۔ برادران قوم، یقیناً یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس امتحان کی گھڑی میں ہمیں سرخرو عطا فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ وقت بہت ہی کریٹیکل ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں، گھروں سے باہر مت نکلیں۔ ہمارے ذمے احتیاط کرنا ہے، وہ ہم کریں۔ دوسری بات جو میرا مقصد ہے آج اپنی قوم سے اپیل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری قوم میں بھی بہت سارے مزدور طبقہ کے لوگ موجود ہیں۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، اس مشکل کی گھڑی میں ہم ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ میں ایک روایت کے ساتھ اپنی اس اپیل کی ابتدا کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص بہت ہی تنگ دست آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے پوچھو کہ میرے تنگی کے دن اور کتنے ہیں، اب مجھ سے یہ تنگی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ آپ سن رہے ہیں اور اس بندے کی بات کا جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ اس بندے کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہے اور رزق اس کا کم ہے، تو میں نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ جب اس کی عمر پوری ہوگی تب جا کے اس کا رزق بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے تنگ دستی ہے اس کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی پیغام کنورٹ کر دیا اس شخص کو۔ تو وہ شخص بڑا صاحب علم بھی تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو کہ میرے حصے کا رزق جو بھی ہے نا وہ مجھے ایک ساتھ ہی دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کی دعا کو قبول فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کا جو بھی رزق تھا نا وہ اس کو عطا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہ رزق جو اس کو اللہ نے عطا کیا نا تو اس بندے نے وہ سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ یہ میں تقوی کی بات کروں۔
तो अल्लाह ताला ने उसको 10 गुना पे बैक किया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो उसके पास फिर 10 गुना हो गया। पहले उसके पास एक था, फिर जब उसने अल्लाह के रास्ते पे वो सारा माल खर्च किया तो वो 10 गुना हो गया। तो फिर वो रिस्क वो सारा अल्लाह ताला के रास्ते पे फिर उसने खर्च कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको 20 गुना अता फरमा दिया। उसने वो 20 गुना फिर अल्लाह के रास्ते पे खर्च किया तो अल्लाह ताला ने उसको 40 गुना अता कर दी। उसने वो रिस्क फिर अल्लाह के रास्ते पे खर्च किया तो अल्लाह ताला ने उसको 80 गुना अता फरमा। इस तरह करते करते थोड़े अरसे में उसकी सखावत के चर्चे मशहूर हो गए और ये तासर चला गया कि वहाँ पे जो भी जाता है वो ऐसा सखी है कि कोई वहाँ से भूखे पेट वापस नहीं आता है, लंगर उसका चल रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का फिर दोबारा से गुज़र हुआ तो उसने जब उस आदमी की सखावत के चर्चे सुने तो वो फिर जो है ना उसको शौक़ हुआ कि यार ऐसे सखी आदमी से मिलना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर चले गए उसको मिलने के लिए। आगे देखते हैं तो वही बंदा, वो परेशान हो गया और अल्लाह ताला से मुखातिब हुए कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, ये तो कल तंग दस्त था और आज जो है ना इसके सखावत के चर्चे हो रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हें पता नहीं है मेरे कानून का कि जो मेरे रास्ते पे देता है तो मैं उसको 10 गुना, एक के बदले 10 अता करता हूँ। तो ये इसलिए इसने मेरे रास्ते पे ये देता गया तो मैं इसको 10 गुना जो है ना अता करता गया हूँ, तो मैंने इसको 10 गुना अदा कर दिया। तो देखें, बात यह है मेरे भाइयों कि रहम पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी ज़ाया नहीं होती है। ये तकवे की बात है कि उस शख्स का तकवा देखो कि जिसके पास रिस्क नहीं था खाने को और उसका अजीम तकवा था, कितना बड़ा तकवा था कि उसके पास जैसे वो रिस्क आया तो उसने अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दिया और तकवा ये था कि अल्लाह ताला मुझे इसका 10 गुना अता फरमाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला एक के बदले 10 अता फरमाता है। तो मेरी अपील है उन सब अपने लोधरा बरादरी के भाइयों से कि जिनके पास गुंजाइश है, जो हो सके अपनी कौम की खिदमत करें। अपनी बरादरी में इर्द गिर्द देखें, जो मज़दूर तबका है, जो आपको पक्का श्योर है कि इस बंदे को रिस्क की कमी होगी, तो उसके सवाल करने से पहले वहाँ पे पहुँचाएँ। ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम भी ये कर रहे हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं स्पेशली अपने लोधरा के ज़िला सदर जनाब मलिक आबिद हुसैन लोधरा को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये जो बुनियाद डाली है, यकीन माने कि वो वाकई एक अज़ीम आदात और अज़ीम ख़यालात के मालिक हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वैसा ही मलिक आबिद जैसे ही तकवा और मलिक आबिद जैसे ही लोग मज़ीद अता फ़रमाए। ये लोग हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया है, यकीन माने। दूसरा मैं ये कहूँगा अपने तमाम सुनने वाले अपनी कौम के भाइयों को कि देखें, हमारा जो ग्रुप है बैठक लोधरियां दी, उसमें हम सब के नंबर मौजूद हैं। अगर किसी के पास कोई नंबर नहीं होगा, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, हमारे पर्सनल नंबर वहाँ से निकालें। नंबर भी बाकी भी सबके मौजूद हैं, हमसे रब्ता करें। आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे रब्ता करें। या कमेटियाँ सारी बनी हुई हैं, पहले कोशिश करें कि वहाँ जो आपके इलाके की कमेटी है, आपके जो ज़िले का सदर है, जो आपके इलाके का आपका सरपंच है, उससे रब्ता करें। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग लावारिस नहीं हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह नंबर सबके पास मौजूद है। नंबर निकालें, हमसे आप अपनी तकलीफ़ बयां करें
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो आपके अपने घर की दहलीज पे पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर हमें जिसका पता ना हुआ तो वो तो तंग दस्ती में रह जाए तो हमें वो माफ़ करे, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिसका हमें पता चल गया कि भाई हमारे फलां भाई के हालात बुरे हैं, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो भूखा नहीं सोएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने भी वादा किया है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और हम भी अपनी कौम से ये वादा करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में हम अपनी कौम के साथ हैं। हमने पहले भी कोशिश की है अपनी कौम की खिदमत करने की, और इस जज्बे को आइंदा के लिए भी हम लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमसे हो सका हम आप लोगों से ताउन करेंगे। और देखें ये कोई हर किसी के हिस्से में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये प्लीज़ इस बात को ज़रा समझें। क्यों कहा गया है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने किसी दूसरे की हेल्प की, अपना सदका खैरात किसी ऐसे हमसाए को या किसी और जानने वालों को दिया तो एक सदक़े का सवाब है। और जिसने अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ को सदका किया तो उसे दो सदक़ों का सवाब मिलेगा। वो इसीलिए कहा गया है। और ये अपने रिश्तेदार की मदद करना, अपनी कौम की मदद करना, यकीन माने ये बाकी सारे अमल से बेहतर है। वो इसीलिए तो कहा है ना कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मूसा मेरे लिए क्या करते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह तेरे लिए मैं तेरे नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा ये तो तेरे लिए, मेरे लिए क्या करते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है, तू ही मुझे बता दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मेरे लिए अगर कुछ करना है तो लोगों की मदद करो, अपने रिश्तेदारों में रहम करो, इंसाफ करो। तो ये समझ लें आप, जिस दिन आपने कोई सदका खैरात अपने किसी रिश्तेदार की मदद की तो उस दिन आप समझ जाएं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो गया। और ये वो लोग भी समझें जिन्होंने आज तक किसी रिश्तेदार की मदद नहीं की, वो ये चीज़ ज़रूर समझें कि शायद उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है कि अल्लाह ताला ने उनसे ये मर्तबा, अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं दिया, कि ये मौका अल्लाह ताला ने नहीं दिया उनको अपनी कौम की, अपने रिश्तेदारों की मदद करने के लिए। तो कोई तो उनसे ऐसा कोई गुनाह हो गया होगा। तो ताइब हों, माफ़ी मांगें और कोशिश करें कि अपनी कौम की हेल्प करें, अपने भाइयों की हेल्प करें। यही वक्त है। अगर आज हमने अपनी कौम को अवॉइड किया, अगर आज हमने अपनी कौम की खातिर कुछ ना किया तो यकीन माने फिर हमारे लिए जो है ना सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं है। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो सारी अपनाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिलेगा। हमारे काम है एहतियात करना, वो हम करते हैं। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोधरा कौम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो यूट्यूब के चैनल लोधरा टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।